Students, today we are going to discuss problem number 10 of admission from page number 166. This is unsolved problem. See the problem here. The following is the balance sheet of Om and Jay on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio of 3:2. So students, 3:2 is the old ratio. Om and Jay, they are old partner. See the balance sheet. This is the old balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2018. Liability side, creditors. Creditors we have to post to the balance sheet liability. New balance sheet में liability में हमें ये posting करनी है. Capital account Om and Jay. Om and Jay का capital account. Now see, this is the new here in this problem. Here we have current account. So when we have capital account and current account both, at that time we have to prepare partners current account and not partners capital account. अगर capital account current account दोनों है, क्या prepare करना है? Partners current account prepare करना है. So here in this problem we have to prepare partners current account. Asset side, cash we have to show in working note. Building, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ऑल आर असेट. न्यू बैलेंस शीट में असेट में इसकी पोस्टिंग होगी. सी द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम. दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018. द टर्म्स बीइंग. नाउ हियर द न्यू पार्टनर इज हु? Jagdish is the new partner, and Jagdish enter in this firm on 1st April 2018. So when we prepare new balance sheet, that time we have to take this date, that balance sheet as on 1st April 2018. See the terms and condition. This is the terms and condition. First one, Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill. Now Jagdish जो है वो goodwill कितना लेकर आ रहा है? He is bringing 3,000 as a share of goodwill. And 50% of goodwill withdrawn by partner in cash. Now this is the case of goodwill withdraw. 50% goodwill क्या हो रहा है? Withdraw हो रहा है. So goodwill bring in cash and goodwill withdraw. तो ये यहाँ पे goodwill withdraw है. He should bring 9,000 as capital. Now students, this is important. जगदीश जो है वो 9,000 कैपिटल लेकर आया फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. नाउ यहाँ पे हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट दिखाना है बिकॉज वी हैव करंट अकाउंट इन बैलेंस शीट. सो ये जो कैपिटल जगदीश लेकर आ रहा है, ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा. ओके ये कैपिटल हम कहाँ पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे. सो कीप दिस इन योर माइंड. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000. So there is adjustment on building. Machinery and furniture to be reduced by 10%. So machinery and furniture दोनों के ऊपर adjustment है, reduction है. That means it is a depreciation. A provision of 5% on debtor to be made for doubtful debts. So this 5% means simply RDD. ये 5% जो है provision, ये क्या है? RDD है. तो डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है. स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000. सो स्टॉक जो है उसका न्यू वैल्यू यहाँ पे है 15,000. तो इस तरीके से बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सबके ऊपर क्या है? देखो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सबके ऊपर एडजस्टमेंट है. सो ऑल दीज आइटम वी हैव टू राइट द अमाउंट इन इनर कॉलम. जब हम ये बैलेंस शीट में पोस्ट कर रहे हैं तो सबका अमाउंट कहाँ पे आएगा? इनर कॉलम में आएगा. ओके तो इस तरीके से आपको ये करना है. सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है यहाँ पे. एक्चुअली दिस इज अगेन द प्रिंटिंग मिस्टेक. पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. So here the problem, the following is the balance sheet of Om and Jay on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio 3:2. So we have to start from the liability. पहले liability और asset की posting कर लेंगे and then हम लोग adjustment देखेंगे. So firstly liability में देखो, creditor 30,000. तो ये हमें कहाँ पे posting करना है? न्यू बैलेंस शीट में.
सो क्रेडिटर जो है 30,000 एंड क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर का अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा 30,000. ओके. देन कैपिटल अकाउंट ओम एंड जय 21,000. बिकॉज लायबिलिटी में करंट अकाउंट भी है, तो ये कैपिटल अकाउंट हमें कहा दिखाना है, न्यू बैलेंस शीट में. दोनों का अमाउंट 21,000 एंड 21,000. करंट अकाउंट दिस इज द, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है. बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे पार्टनर्स करंट में क्रेडिट में आएगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन ओम का अमाउंट क्या है 3,750 एंड जय 3,450. यहाँ पे न्यू ये है कि हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर का ही प्रिपेयर होगा. न्यू पार्टनर का पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा. न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, जो अभी हमने कहाँ पे दिखाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाना है. ओके. तो ये करंट अकाउंट जब आएगा तो आपको ये याद रखना है कि ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा. नाउ असेट कैश 3,000. सो दिस इज द वर्किंग नोट. तो हमने वर्किंग नोट में कैश प्रिपेयर किया है और कैश का बैलेंस जो है वो 3,000 है. डेबिट बैलेंस होता है कैश का, बिकॉज कैश इज असेट, दैट इज वाई इसका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा. बिल्डिंग 15,000. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टिंग करके ले रहे हैं, तो बिल्डिंग 15,000. अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. इनर कॉलम में क्यों, बिकॉज एडजस्टमेंट है. मशीनरी 21,000. मशीनरी 21,000. देन फर्नीचर 900. फर्नीचर 900. देन स्टॉक 12,300. स्टॉक 12,300. डेटर्स 27,000. तो ये हमने यहाँ पे असेट की पोस्टिंग कर ली, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल पोस्टिंग हो गई. सीधा एडजस्टमेंट, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018. तो यहाँ पे हमने न्यू बैलेंस शीट में लिखा है, देखो न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018. जगदीश शुड पे 3,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. जगदीश कितना गुडविल लेकर आ रहा है 3,000. सो 3,000 गुडविल आ रहा है, मतलब कि कैश आपका फर्म में आ रहा है उतना. तो कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर गुडविल फर्म में आ रहा है तो कैश के कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में दिखेगा, बिकॉज कैश कम्स इन है. तो यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट 3,000 कहाँ पे एंट्री होगी, कैश में. एंड सेकंड हमें कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बिकॉज गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से, सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो हमें ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करना है. तो गुडविल जो है वो 3,000 हमें 3:2 में डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है. सो 3:2 मतलब कि 3 + 2 5. तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा 600. So 600 into 3 1800. And 600 into 2 means 1200. 1200. तो गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. 50% गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश. सो 50% विड्रॉ भी हो गया है, तो हमें एट द सेम टाइम गुडविल विड्रॉ की भी पोस्टिंग करनी है. तो जब गुडविल फर्म में आ रहा है एंड पार्टनर्स में शेयर हो रहा है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा. अभी जब विड्रॉ होगा तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि विड्रॉ बाय पार्टनर इन कैश, इन कैश में विड्रॉ हुआ मतलब अभी फर्म से तो पैसा गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट हो रहा है वो क्रेडिट होगा. तो यहाँ पे कैश के क्रेडिट में आएगा क्या, बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट. गुडविल 3,000 है, 50%
जो है वो विड्रॉ हुआ, मतलब कितना विड्रॉ हुआ, 3000 का 50% मीन्स 1500 विड्रॉ हुआ। तो ये एक इफेक्ट देखो यहाँ पे क्रेडिट में हो गया, एक इफेक्ट यहाँ पे पार्टनर्स करंट पे कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा। और विड्रॉवल जब हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। रिटर्न ऑफ होता है तो कैश या बैंक लिखते हैं, विड्रॉ हो रहा है तो क्या लिख रहे हैं, गुडविल अकाउंट। तो ये याद रखो। 1500 भी हमें क्या करना है, 3:2 में ही डिवाइड करना है, या फिर 1800 का हाफ कर लो, तो 1800 का हाफ आ रहा है 900, 1200 का हाफ कर लो, उसका आ रहा है 600। ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। तो ये 50% क्या हो गया, विड्रॉवल की एंट्री हो गई, पार्टनर्स करंट के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। ऐसे हमने ये इसके इफेक्ट कर दिए। He should bring 9000 as capital for 1/4 share in future profit। तो जगदीश कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, he is bringing 9000 कैपिटल। तो कैपिटल की पोस्टिंग हमें कहाँ पे करनी है, बैलेंस शीट में। क्यों बैलेंस शीट में कर रहे हैं, बिकॉज हियर इन दिस प्रॉब्लम वी प्रिपेयर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम इस प्रॉब्लम में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इस तीनों की टोटल आउटर कॉलम में लेंगे, तीनों की टोटल आती है 51,000। तो ये कैपिटल हो गया, ये एक इफेक्ट हो गया। तो कैपिटल फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि एक्चुअली कैश कम्स इन, कैश फॉर्म में आ रहा है तो कैश के कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा टू जगदीश कैपिटल। कौन लेकर आ रहा है कैपिटल, जगदीश। तो यहाँ पे आएगा जगदीश कैपिटल, जगदीश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, 9000। ओके, इस तरीके से हमने कैश अकाउंट में एक एंट्री कर दी एंड एक एंट्री कहाँ पे हो रही है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, कैपिटल की। नाउ बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। सो बिल्डिंग पहले कितना था, 15,000, अब कितना हो रहा है, 18,000। सो नेचुरली बिल्डिंग क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट हो गया मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बिल्डिंग का न्यू वैल्यू 18,000 हमें आउटर में लिखना है, इनर कॉलम में नहीं लिखना है। बिल्डिंग का अभी न्यू वैल्यू बन गया 18,000। तो कितने से एप्रिशिएट हुआ स्टूडेंट, 3000 से एप्रिशिएट हुआ, 3000 से एप्रिशिएट हुआ है। सो बिल्डिंग का अमाउंट जो है वो बढ़ गया। असेट इंक्रीज, जब असेट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के हमें कहा लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। और कितने से इंक्रीज हुआ, 3000 से इंक्रीज हुआ तो 3000 लिखना है। डोंट राइट हियर 18,000। अगर आप 18,000 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। Then machinery and furniture to be reduced by 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहे 10% से। सो मशीनरी यहाँ पे कितना है, 21,000 रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये क्या है, दिस इज डेप्रिसिएशन। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 21,000 का 10% दैट मीन्स 2,100। आउटर में अमाउंट ले लो, 21,000 माइनस 2,100 कितना आएगा, 18,900। ओके, फर्नीचर का भी आपको डेप्रिसिएशन करना है, बिकॉज फर्नीचर का भी 10% बोला है। सो फर्नीचर का भी लेस डेप्रिसिएशन, 900 का 10% मतलब कि 90। 900 माइनस 90 मीन्स 810। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मशीनरी भी रिड्यूस हुआ एंड फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है। तो असेट का जो है वो असेट डिक्रीज हो रही है। असेट जब डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा। तो मशीनरी कितने से रिड्यूस हुआ, 2,100 से, एंड फर्नीचर जो है वो 90 से रिड्यूस हुआ है। तो दोनों के इफेक्ट हमें कहा लेने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेने हैं। सी द नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। नाउ दिस इज सिंपली आरडीडी। तो डेटर के ऊपर 5% इज द आरडीडी। सो 27,000 का 5% कितना आता है, व्हेन वी कैलकुलेट इट, इट कम्स 1,350। सो 27,000 माइनस 1,350 मीन्स 25,650। तो यहाँ पे अगेन डेटर जो है बिकॉज ऑफ आरडीडी रिड्यूस हो गया,
कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर ये भी हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। एंड आरडीडी का जो अमाउंट है वो लिखो 1315। इस तरीके से तो डेटर का भी हो गया। सी स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000। नाउ स्टॉक 12,300 है, अभी स्टॉक का वैल्यू बन गया 15,000, तो स्टॉक का जो अभी का वैल्यू है वो आउटर में ले लो 15,000, तो आपको समझ में आएगा कि अप्रिशिएट हुआ या डिप्रिशिएट हुआ। पहले 12,300 था, नाउ इट इज 15,000, सो नेचुरली इट इज अप्रिशिएटेड। कितने से अप्रिशिएट हो रहा है, 15,000 माइनस 12,300 करो, आएगा 2,700। तो 2,700 से असेट क्या हो गया, अप्रिशिएट हुआ। अप्रिशिएट हुआ मतलब स्टूडेंट, अप्रिशिएट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सो 2,700 से अप्रिशिएट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पोस्टिंग की है। अभी यहाँ पे सारी पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ फर्स्टली वी हैव टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ 3,000 प्लस 2,700 टोटल कितना आता है, 5,700 एंड टेक दिस टोटल इन डेबिट साइड। डेबिट साइड में भी हमको यही टोटल लेनी है 5,700। ओके, अभी जो डिफरेंस है 5,700 माइनस total of this figure 2,190 and 1,350। अगर इसको हम माइनस करते हैं 5,700 से तो अमाउंट कम्स 2,160। नाउ दिस इज द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 2,160 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे करेंगे तो अमाउंट आता है 1,296 एंड 864 जय का अमाउंट। तो ये दोनों का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डेबिट में है तो क्रॉस करके क्रेडिट में आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ओम का अमाउंट 1,296 एंड यहाँ पे 864। नाउ डू द टोटल ऑफ पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स करंट की टोटल कर दो। जय की टोटल आ रही है यहाँ पे 5,514 एंड ओम की टोटल आ रही है 6,846। तो यही टोटल आपको उठा के यहाँ पे लिखनी है डेबिट साइड में 6,846 एंड यहाँ पे 5,514। नाउ अब 5,514 में से 6 यही टोटल आपको यहाँ पे डेबिट में लिखनी है। तो 5,514 में से आपको 600 लेस करना है। लेस करोगे अमाउंट आ रहा है 4,914। ओके, एंड ओम का अमाउंट कितना आ रहा है 5,946। तो ये दोनों के हमें बैलेंस मिल गए। ये बैलेंस हमको कहाँ पे लिखने हैं, न्यू बैलेंस शीट में। न्यू बैलेंस शीट में हमने करंट अकाउंट लिखा है, वहां पे लिखने हैं 5,946 एंड जय का 4,914। दोनों की टोटल आउटर में लेकर आओ 10,860। ओके, एंड नाउ डू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी की टोटल आती है 91,860। ओके, ये लायबिलिटी की टोटल आ रही है। अभी असेट की टोटल हमें करनी है, बट असेट की टोटल करने से पहले कैश भी वहां पे ट्रांसफर करना है। तो असेट की टोटल के लिए पहले कैश की टोटल कर दो। तो 3 + 3 9, 9 + 3 3 एंड 9 मीन्स 18,000। कैश का डेबिट जो है 18,000 है, यही 18,000 हमें यहाँ पे लिखना है। एंड देखो बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 18,000 माइनस 1,500 कैरी डाउन।
सो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे कितना आ रहा है 13,500। ये 13,500 हमें असेट में लेना है, कैश। एंड नाउ डू द टोटल ऑफ असेट। असेट की टोटल भी आएगी 91,860। हाँ, ये इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस प्रॉब्लम में न्यू क्या है, करंट अकाउंट है। विड्रॉवल का हमने गुडविल देखा है, करंट अकाउंट देखा, ये यहाँ पे न्यू है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।